फर्दर नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक हमने काफी कुछ पढ़ लिया है इस चैप्टर में. वी हैव read many of the facts related to this chapter. Last topic was which we were studying. Main topics I would be revising from since last 2 days which we have studied. First was Al-Biruni's description of the caste system. Then after Al-Biruni's accounts of the system of Varnas. Then after that Ibn Battuta and the excitement of the unfamiliar. That how he became excited of some unfamiliar things which he hasn't seen anywhere before coming to India. Then after that, he talked about the coconut and the pan. Then after that, Ibn Battuta and Indian, yani he talked about the Indian cities, nature of the Indian cities. Then after that, he also talked about the postal system of India, unique system of communication. He used to say that. Then synopsis khatm ho gaya tha and the module was completed. Then we came on to next module. I think. Bernier and the Degenerate East, in which we were talking about Francois Bernier and the perception of that person towards India, in which we took introduction of Bernier. Then after that, we tried to understand Bernier travelers. Then after that, we tried to understand the question of land. मतलब उन्होंने जो जो इम्पोर्टेंट बातें कही थी और जिन बहुत इम्पोर्टेंट बातों के बेसिस पे उन्होंने इंडिया को यूरोप से कंपेयर किया था, we studied those facts. First fact was the question of land ownership. So I think we studied that also, that how he studied, how he told about that, and after that, how he compared this question related to land ownership uh, with the economy of America. Yeah, with the system of Europe, sorry, not America, because he was a European. Then after that, we also studied that he gave the name of, he proposed a name from his side that India के अंदर ये सब इसलिए था because the system of ownership was crown type, यानी कि he declared the rule of India, Mughal rule of India as crown ownership. Disadvantages of the crown ownership हमने पढ़ा. फिर after that definition of the Indian society. According to Bernier, definition of Indian society भी हमने पढ़ी थी. Then after that he faced a lot of criticism also. तो उस criticism को भी हमने देखा था कि किस तरीके से उनकी बातों को लोगों ने गलत साबित किया. Because सभी लोग जानते that he was biased while talking about India, because only motive of his was to compare India with the Europeans, and after that to show India inferior and Europe superior. Then after that we talked about that, sir, ki kindly tell us the topic theory of crown ownership as a source of inspiration. इसमें हमने एक लाइन पढ़ी थी. We studied one line yesterday that influenced many Western thinkers from 18th century onwards. When Francois Bernier wrote the theory of crown ownership, that theory of crown ownership became a source of inspiration for many other forthcoming, जो future में आने थे इंडिया में, उन Western thinkers को this theory inspired a lot कि हमें भी जाना चाहिए, and after that we should also go to India, and after that we should also compare India with Europe, and after that हमें भी यही करना चाहिए what Francois Bernier did, because Francois Bernier को उसके सक्सेस बहुत मिला था. आफ्टर दैट फ्रैंकोइस बर्नियर आई थिंक कह सकते earned a lot in the form of success also and in the form of luxury and money also. Therefore, keeping this in mind, different other Western thinkers started coming to India 18th century onwards. 18th century onwards का मतलब होता है 1700 के बाद से. और दूसरे वेस्टर्न थिंकर्स इंडिया में आने स्टार्ट हो गए रिलेटेड टू डिफरेंट कंट्रीज, बिकॉज फ्रैंकोइस बर्नियर वाज फ्रेंच. आफ्टर दैट डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशंस ऑफ यूरोप से आने स्टार्ट हो गए वेस्टर्न थिंकर्स. Now you will say that ठीक है sir, you are telling that theory of crown ownership became as a source of inspiration for many other forthcoming western thinkers to come to India. So kindly sir make us understand, यानी कि इस चीज को आप हमें समझाइए through instances. So let's take instance 1. First instance is theory of Oriental despotism. First of all, this theory was given by whom? Proposed by French philosopher. This theory is was also given by a French philosopher only, and was that Montesquieu. यानी कि after Francois Bernier, the second Western thinker was also French, who tried to talk about India in his own way. Understood? And the theory which he gave was theory of Oriental despotism. According to this theory,
व्हाट वाज द सेइंग ऑफ मोंटेस्क्यू? इस थ्योरी के हिसाब से मोंटेस्क्यू ने क्या बोला था? द थ्योरी ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यू सेज the rulers of Asia enjoyed absolute authority over their subjects by keeping them under crude poverty, where all land belonged to the king, with rare survival environment for everybody, leaving the king and his nobles. सिंपल है, बात कहने का तरीका अलग था, बात वही थी जो फ्रैंकोइस बर्नियर ने पूरी दुनिया को बताई थी. यानी कि he also what he told, what he spoke, what he confirmed about the Indian rule and Indian subjects. First of all, the rulers of Asia, according to him, was the king, and the people under the rulers of Asia, according to him, was subjects. तो अब उन्होंने क्या कहा? He straight away, but the difference between Francois Bernier and him was that कि Francois Bernier used to talk only about Indian subcontinent because his clear target was to uh, prove India as inferior, Indian subcontinent as inferior, and European continent as superior. But here the case is आप कह सकते हैं minute different because here Montesquieu compared complete Asia with complete Europe. He did not only took India for comparison. उन्होंने दोनों पूरे के पूरे एशिया को लिया. That's why he is saying कि जो एशिया के रूलर्स थे, अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यू, एशिया के जो रूलर्स थे वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी एंजॉय करते थे. एब्सोल्यूट अथॉरिटी मतलब 100% अथॉरिटी ऑफ एवरीथिंग इन देयर हैंड्स. वो होती है एब्सोल्यूट, कंप्लीट. वो एंजॉय करते थे किन के ऊपर? ओवर देयर सब्जेक्ट्स, मतलब ओवर द पीपल, ओवर द लोकल पॉपुलेशन. ठीक है. कैसे करते थे? बाय कीपिंग देम अंडर क्रूड पॉवर्टी, उनको बहुत ही बुरी और दरिद्र और गरीब अवस्था में रख के. वेयर ऑल लैंड टू द, जहां पे सारी लैंड इनकी होती थी, विद अ रेयर सर्वाइवल एनवायरनमेंट फॉर एवरीबॉडी, और बाकी राजा के साथ राजा के नोबल्स यानी कि राजा का मंत्रिमंडल और राजा के जो आप कह सकते हैं ब्यूरोक्रेट्स, वही एक सर्वाइवल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लायक होते थे. अदरवाइज उनके अलावा कौन वहां पर प्रॉपरली सर्वाइव कर पाता था ये कहना थोड़ा मुश्किल है. यानी कि ही हिमसेल्फ कंफर्म दैट कि द सर्वाइवल एनवायरनमेंट ओनली वाज सूटेबल फॉर द किंग एंड हिज नोबल्स. अदरवाइज to any other third kind of person, to any other third kind of people, to any other third kind of human अंडर दीज एशियन किंग्स, उसके लिए एनवायरनमेंट सर्वाइवल का थोड़ा रेयर ही था. द एनवायरनमेंट ऑफ सर्वाइवल वाज रेयर ओनली. तो दिस वाज थ्योरी ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म गिवन बाय मोंटेस्क्यू. इस थ्योरी का भी ट्रैक उसी रास्ते पर है, ऑन द सेम वे, ऑन द सेम पेवमेंट, which was confirmed by Francois Bernier earlier. Now we will take instance 2, sorry, and in this instance 2 we will study about some other, I think I can say some third philosopher, the concept of Asiatic mode of production. अब ये जो instance 2 है, this instance 2 is talking about a different concept given by a different traveler. This concept was named as the concept of Asiatic mode of production. Let's see who gave it and what this tried to make us understand. First of all, proposed by Karl Marx in the 19th century. Yani ki I think we can say that nearby after 100 years of the previous theory, of the theory of Oriental despotism, एक और थ्योरी आई, द कॉन्सेप्ट ऑफ एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें एशिया का नाम आ रहा है. ऑब्वियसली ही इज टारगेटिंग एशिया क्लियरली. दिस थ्योरी वाज गिवन बाय कार्ल मार्क्स व्हेन इन द 19th सेंचुरी, यानी कि समवेयर आफ्टर 1800 ये कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दी थी. सेकंड पॉइंट विच सेज, क्या बोलती है ये थ्योरी? द स्टैग्नेंट सोशल सिस्टम एग्जिस्टेड इन इंडिया एंड अदर एशियन कंट्रीज कंपोज्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑटोनोमस एंड egalitarian village communities presided by the imperial court respecting their autonomy till they followed the flow of surplus impeded by the state. सिंपल बात वही है, थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में है. इन्होंने क्या कहा है, व्हाट ही इज ट्राइंग टू सेल, कि भारत का जो सोशल सिस्टम वो पुअर एग्जीक्यूटेड, पुअरली एग्जीक्यूट, इट्स नॉट इन प्रॉपर शिप. therefore according to him the social system of India was stagnant, जो कि इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा दूसरी एशियन कंट्रीज में भी एग्जिस्ट स्टैग्नेंट फॉर्म में ही करता है, बिकॉज इट इज नॉट इन प्रॉपर शेप. व्हाई इट इज नॉट इन प्रॉपर शेप अकॉर्डिंग टू हिम? बिकॉज उस सोसाइटी के अंदर बहुत सारी बॉडीज ऐसी हैं, स्पेशली अगर हम विलेजेस में देखें, जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, यानी कि जो एब्सोल्युटली एक्ट करती हैं. मतलब अब उन्होंने वहां पे एब्सोल्यूट वर्ड दिया, इन्होंने ऑटोनोमस दे दिया. यानी कि देयर वर सेवरल विलेज कम्युनिटीज जिनको प्रिसाइड कौन करता था? इंपीरियल कोर्ट. यानी कि उनका अपना एक इंपीरियल कोर्ट होता था जो उन विलेज कम्युनिटीज को प्रिसाइड करता था.
and those village communities and the imperial courts of those village communities were used to be autonomous and egalitarian in their own sense. Understood? और वो अपनी ऑटोनॉमी को तब तक रेस्पेक्ट करते थे जब तक उनका फ्लो ऑफ सरप्लस फॉलो नहीं हो जाता, एंड दिस सेम पॉलिसी वाज बीइंग क्रिएटेड बाय द स्टेट आल्सो। यानी कि इनका कहने का मतलब है, ऊपर वालों ने तो ये समझाया है कि द थिंग्स वर सेम एट एवरी लेवल। इन्होंने ये समझाया है कि जो स्टेट करता था वही नीचे की विलेज कम्युनिटीज करती थी, यानी कि द स्टेट वाज ऑटोनॉमस एंड इगैलिटेरियन इन इट्स ओन सेंस, and the village communities under the presidentialship of imperial courts, their own imperial courts, they were autonomous in their own sense। भुगतना किनको पड़ता था? पब्लिक को। तो इन देयर अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, तो यही इनका यही कहना था कि सिंपल है, हर जगह लोग बैठे हुए थे, हर जगह ऑफिसर बैठे हुए थे, हर जगह राजा के नुमाइंदे बैठे हुए थे, चाहे वो विलेज कम्युनिटीज की बात कर लो, चाहे वो स्टेट अथॉरिटीज की बात कर लो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स की बात कर लो, चाहे वो किसी भी तरीके के मेन या वुमेन की बात कर लो, हु वर वर्किंग फॉर द किंग, दे वर वर्किंग फॉर द किंग एंड देयर नॉबल्स। उसके अलावा जितने लोग और थे उनकी कोई ना रेस्पेक्ट थी, उनकी कोई ना राइट्स थे, वो सिर्फ और सिर्फ अंडर क्रूड पावर्टी मेंटेन किए जाते थे। अब आप कहोगे सर वेदर, फैक्ट चेक करिए थोड़ा सा, काइंडली पुट ऑल दीज थिंग्स इनटू अ फैक्ट चेक कि वेदर ऑल दीज थिंग्स वर राइट और रॉन्ग। तो आई थिंक लेट्स टेक अ फैक्ट चेक ऑफ इट कि ये चीज कितनी सही बोली है इन्होंने भाई साहब ने और कितनी गलत बोली है। आई थिंक ऑल द थ्री फिलोसोफर्स फ्रॉम यूरोप विच यू स्टडीड, उन तीनों ने लगभग लगभग एक ही बात बोली है। दे ट्राई टू से अबाउट इंडिया इन द सेम वे बट विद अ डिफरेंट अप्रोच, with a different language, with a different quite a short form of analysis। तो आई थिंक देख लेते हैं। अब बात ये आती है, प्रॉब्लम कम्स व्हेन देयर लुक्स अ कॉन्ट्रडिक्शन अगेंस्ट द अबव थ्योरी। ऊपर की जो थ्योरीज दी गई हैं उनमें कॉन्ट्रडिक्शन है। क्या? reality far from the above। Actually, the thing is that the reality which was being shown by these philosophers, either Karl Marx or Montesquieu or before that Francois Berger, in originality the reality was completely different from the reality which they tried to show। यानी कि सही में रियलिटी बिल्कुल अलग थी, उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था उन चीजों से जो चीजें ये बता रहे थे। यानी कि एक तरीके से इन्होंने एक अपने ही दिमाग में इंडिया का एक फैंटेसी क्रिएट कर लिया था। दे क्रिएटेड अ फैंटास्टिकल वर्ल्ड ऑफ इंडिया इन देयर ओन माइंड्स, which they want to think, which they wanted to think, which they wanted to show, which they wanted to speak upon to the whole world, just to show India as inferior and European countries as superior। अब आप कहोगे सर ये क्यों, ऐसा क्यों कि रियलिटी बिल्कुल दूर है इनकी बातों से। तो लेट्स गो इनटू द रीजन। There were three collinear points. First, the zamindars enjoying superior rights. Third, as untouchable laborers. And in between was the big tent, hiring the second for the commodity and production। Actually, ये जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है पूरी तरीके से गलत इसलिए हो जाती है बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट द विलेज कम्युनिटीज एंड ही इज टॉकिंग कि विलेज कम्युनिटीज के अंदर सब ऑटोनोमस थे, एवरीबडी वाज ऑटोनोमस and egalitarian। And one more thing, he was telling that autonomous थे plus he was telling that the society was egalitarian। एक तरफ आप बोल रहे हो कि society stagnant social system था, after the social system being stagnant you are trying to say that your society was egalitarian, ठीक है, and after that you are telling that your society was driven by an autonomous attitude, your village communities were driven by an autonomous attitude। ठीक है, कि बस एक ही बॉडी थी, वो जो कहती थी वही होता था, वही गांव में होता था, वही राजा के दरबार में होता था, वही राजा करता था, वही गांव के विलेज कम्युनिटीज और ऑफिसर्स करते थे। वो थ्योरी कंप्लीटली गलत साबित हो गई। दैट थ्योरी कंप्लीटली गॉट रॉन्ग। व्हाई? रीजन, एक्चुअली अगर हम विलेज कम्युनिटीज को प्रॉपरली देखें तो जो आपने मैथमेटिक्स में आई थिंक यू मस्ट हैव स्टडीड व्हाट आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स, द पॉइंट्स व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर, और उनको जोड़ो तो एक लाइन बन जाती है। अंडरस्टूड? तो वही विलेज कम्युनिटीज के अंदर एक सिस्टम था। विलेज कम्युनिटीज के अंदर भी तीन कोलिनियर पॉइंट्स थे जो वर्टिकली मान लो आप 1 2 3 वो ऐसे अरेंज थे सोशल सिस्टम में इस तरीके से। फर्स्ट कोलिनियर पॉइंट वाज द जमींदार, सेकंड वर यानी कि जमींदार वो थे जिनके पास सबसे ज्यादा राइट्स थे, दोज हु यूज्ड टू एंजॉय द मोस्ट सुपीरियर राइट्स इन द सोसाइटी। ठीक है, और थर्ड जो लेवल होता था वो होता था अनटचेबल लैंड लेबरर्स का। अंडरस्टूड?
First, the zamindars. Third, the untouchable land laborers, those who used to face the practice of untouchability. And second, between में कौन थे? Big peasant, obviously. One number, first number zamindars, then big peasants, then the laborers. That too were untouchable. तब आप सोच सकते हैं कि जो बड़े peasants होते थे, जो बड़े किसान होते थे, वो mediators होते थे किनके? जमींदार्स के और लैंड लेबरर्स के. अंडरस्टूड. और जमींदार्स के ऊपर कौन बैठा होता था? स्टेट बैठा होता था. तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे इससे पता चल गया है दैट देयर वर 3 लेवल्स. द जमींदार्स वर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पीजेंट्स एंड द पीजेंट्स वर डायरेक्ट, मतलब आप कह सकते हैं द जमींदार्स वर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द अनटचेबल लैंड लेबरर्स एंड द बिग पीजेंट्स वर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्टेट. यानी कि देयर वर मीडिएटर्स बिटवीन द टू. So how can you say that the society was autonomous? How can you say that the society was egalitarian? इससे साबित होता है कि सोसाइटी लेवल्स में डिवाइडेड थी. हर लेवल पे बैठा हुआ आदमी अपना काम कर रहा था. Point B, the reality which was being shown by all these philosophers, वो तो खैर ओरिजिनलिटी में और रियलिटी से बहुत डिफरेंट थी ही. साथ में जो रियल में रियलिटी थी वो काफी कॉम्प्लेक्स थी. यानी कि द रियलिटी of the social system of India at that point of time in original perspective it was very complex. Kaise? Let's see. Artisans were not provided with any aided incentives for improvement in their manufactures and production, hence everywhere in decline. जो कारीगर जिनको हम बोलते हैं, और कारीगर वो होते हैं जो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में हो सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट में हो सकते हैं, हैंडलूम में हो सकते हैं, क्राफ्ट में हो सकते हैं, चाहे वो बर्तन बनाने वाले हो, टूल मेकर्स हो, ऑल दीज पीपल, आर्ट पेंटर्स हो, और बहुत सारी चीजें, मतलब एवरी काइंड ऑफ पर्सन हु परफॉर्म सम लेबर टू अटेन समथिंग विद हिज क्रिएटिविटी या विद हिज स्किल, दैट पर्सन कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ आर्टिजन. तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं दैट आर्टिजन्स वर नॉट प्रोवाइडेड. आर्टिजन्स उस टाइम के जो होते थे उनको एडेड इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं किए जाते थे. यानी कि अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, अकॉर्डिंग टू दैट टैलेंट, उनको वो रिसोर्सेज और उनको इंसेंटिव्स मतलब एडिशनल कंडीशन, एडिशनल सिचुएशंस एंड एडिशनल फैसिलिटीज जो मिलनी चाहिए उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, वो उनको ही दी जाती थी. नहीं दी जाती थी तो वो मैन्युफैक्चरर्स अपना इम्प्रूव नहीं कर पाते थे, एंड मैन्युफैक्चरर्स इम्प्रूव नहीं कर पाते थे, हेंस लीडिंग दैट प्रोडक्शन वाज आल्सो नॉट इम्प्रूव्ड. देयरफॉर हर जगह हैंडलूम कह लो या आर्टिजन्स कह लो, उनका जो डेवलपमेंट था वो डिक्लाइन पे था. यानी कि द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिजन्स ऑन डिक्लाइन एट एवरी निच एंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द रूल्ड बाय द मुगल्स. यानी कि कारीगरों की इज्जत नहीं थी. नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिलेटेड टू कंसीड द अबव थ्योरी. अब मेन थिंग इज दैट कि ये जो बात बोली है, आप कहोगे किसने बोली है? फ्रैंकोइस बर्नियर ने बोली. अब आप कहोगे सर फिर तो इस बात को भी चेक करिए आप कि वेदर हाउ मच दिस थिंग इज करेक्ट एंड हाउ मच दिस थिंग इज रॉन्ग. ओके, लेट्स चेक कि दैट वेदर द present statement which we just studied given by Francois Bernier is appropriately correct or inappropriately wrong. So let's see. First point, Bernier described the Mughal cities as camp towns depending on the imperial camp for the survival with no fundamental social and economic patronage of their own. मतलब I think I'm thinking that why they came to India. They came to India to write history or to write fiction. मुझे तो लग रहा है ये कहानियां लिखने आए थे. ठीक है ना. This person doesn't executed a travel account. He actually wrote stories about India. And he wrote stories about India according to what? According to that which he used to think, according to his mentality, according to his mind, according to his approach. और उसके अंदर इंडिया एक नीचे लेवल पे आ रहा है उसके लिए, on basis of which he used to execute all one or the other different thing. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या कहा? बर्नियर ने मुगल्स के अंडर जितने भी सिटीज थी, यानी कि ही कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड द सिटीज ऑफ इंडिया अंडर मुगल रूल, वो कैंप टाउन्स थे. कैंप टाउन समझते हैं आप? उन्होंने कहा कि एक रिफ्यूजी कैंपों की तरह लोग रहते थे मुगल राज में. बताइए आप, अकॉर्डिंग टू हिम क्या था वो? उन्होंने ये कहा कि लिविंग द किंग, लिविंग द नोबल्स, लिविंग द क्लर्जी एंड लिविंग द ब्यूरोक्रेट्स, सभी लोग इन चार लोगों को छोड़ के जितने भी लोग थे अंडर द मुगल रूल मुगल सिटीज में,
वो सब कैंपों में रहते थे। इसीलिए मुगल टाउन्स सिटीज को उन्होंने कैंप टाउन्स बोला है, यानी कि इंसल्ट किया है उन्होंने, मुगल की सिटीज को सिटीज नहीं बोल रहे हैं, ही इज डिक्लेयरिंग देयर सिटीज एज कैंप टाउन, कि बस्तियों के शहर थे इनके, तो बस्तियां बसी रहती थी, बाकी बस इनके अच्छे अच्छे घर बंगले होते थे, ठीक है ना। वेयर ही फर्दर एक्सक्लेम्ड दैट कि जितने भी वो टाउन्स थे जिनको हम कैंप टाउन्स कह रहे हैं, उन सबका सर्वाइवल इंपीरियल कैंप पर डिपेंड करता था। इंपीरियल कैंप कौन? द किंग, द नोबल्स, द क्लर्जी एंड द ब्यूरोक्रेट्स। यानी कि स्ट्रेट अवे ही इज सेइंग दैट कि फॉर देयर सर्वाइवल अदर पीपल डिपेंडेड अपॉन द इंपीरियल कैंप, जहां पर पूरे के पूरे सोसाइटी के अंदर देयर वाज नो फंडामेंटल सोशल एंड इकोनॉमिक पैट्रोनेज ऑफ देयर ओन, यानी कि किसी भी आदमी को अपनी खुद की इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं थी, फंडामेंटल सोशल फ्रीडम नहीं थी। अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि सिंपल वही बात, अकॉर्डिंग टू हिम आल्सो द सोशल सिस्टम ऑफ इंडिया वाज स्टैग्नेंट, द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया वाज स्टैग्नेंट, everything was under imperial court of Mughals, everything was under the jurisdiction of imperial court of Mughals, and according to him also he clearly said that कि पूरा का पूरा भारत ही कैंप था। मुगल्स भी कैंपों में रहते थे, बस वो बड़े बड़े कैंप थे, वो अरबपति कैंप, अरबपतियों के कैंप जैसे होते हैं। बाकी जो जनता थी, आम जनता थी, नॉर्मल पब्लिक थी, नॉर्मल पीपल थे, वो रहते थे बस्तियों में। अकॉर्डिंग टू हिम ही डिक्लेयर्ड इंडियन सिटीज एज कैंप टाउन्स। Second point, in case of questioning land ownership, Bernier oversimplified everything as there were all kinds of towns like port towns, manufacturing towns, trading centers. फिर जब उनकी इतनी खराब थ्योरी पर लोगों ने क्वेश्चंस पुट करने स्टार्ट किए, when the people started questioning him कि सर आप इतना सब कुछ बोल रहे हैं, you are declaring the cities of India camps, लैंडशिप का जो सिस्टम था इंडिया में, ये कैसे आया फिर कि फर्स्ट लेवल वाज लैंड ओनर, सेकंड लेवल वाज the big peasants and third level was untouchable laborers। ये हायरार्की कैसे आई, ये फेडरल स्ट्रक्चर कैसे आ गया? आप तो ये कह रहे हैं everything was imperial, you are saying that everything was centralized, everything was just ruled by only one, only single power। तो if that was done, तो ये कैसे आया? ये तीन लेवल्स तो विलेज कम्युनिटीज में देखने को मिल गए सर, ये कैसे आया? ये तो आप बता नहीं रहे, यू आर नॉट टेलिंग अबाउट दिस एस्पेक्ट कि विलेज कम्युनिटीज में तीन लेवल्स हैं। So when this question was being asked related to land ownership to Francois Bernier ने थोड़ा इसको ओवर सिंप्लीफाई किया। वो अबाउट व्हाट कि नहीं आप समझ नहीं रहे, आपको जैसा रहा वैसा है नहीं है, ऐसे तो मैंने मना किया। आफ्टर दैट ही ट्राइड टू मैनिपुलेटिंग, मतलब ही ट्राइड टू मैनिपुलेट द थिंग। ही सेड दैट मैंने ऐसे थोड़ी मना किया, ऐसे तो पोर्ट टाउन्स भी थे, मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स भी थे, ट्रेडिंग सेंटर्स भी थे। तो अपनी बात को घुमा के ही मैनिपुलेटेड हिज टॉक, ही मैनिपुलेटेड हिज फैक्ट, he manipulated the things which he tried to show before with complete negativity when after the question was being put on him related to land ownership, घुमा दी बात। बोले कि ऐसे ने कब मना किया, ऐसे तो हर तरह के लोग थे। थर्ड, मर्चेंट्स collectively represented as organized own caste cum occupational bodies। मर्चेंट्स कौन होते थे? अकॉर्डिंग टू हिम मर्चेंट्स वो थे जिनका अपना खुद का एक ऑर्गेनाइज वे था, अपना खुद का एक ऑर्गेनाइज सिस्टम था, और एक पर्टिकुलर मर्चेंट की जो खुद एक पर्टिकुलर मर्चेंट ग्रुप जो होता था दैट कंप्लीटली डिपेंडेड अपॉन कास्ट। यानी कि अकॉर्डिंग टू फ्रैंकोइस बर्नियर, मर्चेंट्स यूज्ड टू बी ऑफ द सेम कास्ट, यानी कि वन ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स विल बी बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर वन कास्ट एंड दे यूज्ड टू वर्क इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे एंड दे वर ऑक्यूपेशनल बॉडीज। उनका काम था धंधा करना, काम करना, व्यापार करना। Second point, Western India called Mahajans with Seth as their chief, and the proposition of vocabulary for them was different in different parts of India। Merchants को हम इंडिया के अंदर अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नाम से बुलाते हैं। लाइक इन वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया कौन सा? राजस्थान, यू कैन से गुजरात, यू कैन से उत्तर प्रदेश, सम पार्ट्स, दिल्ली एंड ऑल जो भी है। इन वेस्टर्न इंडिया वी यूज टू कॉल मर्चेंट, व्यापारियों को हम क्या बुलाते थे? महाजन। और उन महाजन्स में उन पूरे उनका अपना मंडल होता था, उनका अपना ग्रुप होता था। तो उस ग्रुप में जितने भी मर्चेंट्स होते थे, ऑल दोज मर्चेंट्स यूज्ड टू बी कॉल्ड एज महाजन, एंड द चीफ ऑफ ऑल दोज मर्चेंट्स यूज्ड टू बी कॉल्ड एज सेठ, जो आज भी हम बोलते हैं शेठ, नॉट सेठ, शेठ। देयर इन अर्बन सेंटर्स, बड़े बड़े शहरों में क्या बोला जाता था इनको? लाइक अहमदाबाद, नगर शेठ, क्योंकि वहां पर व्यापारियों का पूरा एक नगर मंडल होता था, यानी कि कंप्लीट टाउन ऑर्गेनाइजेशन होती थी सारे मर्चेंट्स की, उनमें जो हेड होता था, इसलिए उसको नगर शेठ बोल देते थे। तो आई थिंक फॉर टुडे इट्स कंप्लीट।
Tomorrow we will study about last topic, other urban groups and women slaves. And I think you should remember that tomorrow is the doubt class for chapter number 1 also. So I think come onto the screen, all of you, and please go into the doubts if you have any.